Good evening, everyone. Welcome to PGK Pathshala Post Market Report, 19th of July. In the description of my videos for the past couple of days, you may have seen, not couple of days, I think I've been posting my videos with the descriptions showing the Fibonacci extension of both Nifty and Bank Nifty. I have been doing it for the past 6, 7, 8 days, and you people, those who are carefully reading my descriptions, thank you for doing so. And those who are not reading my descriptions, I am requesting them to please read the descriptions, because very important support levels are raised, and support levels and targets for Nifty and Bank Nifty are there, because now we are in all-time high zone, right? It is important for us to know also that where the market can get some resistance in the new high areas, right, in the future, in the foreseeable future. So 19950 का मैं एक टारगेट दिया था, जो 150% ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन कैलकुलेशन करके आता है। तो ये जो 150% फिबोनाची एक्सटेंशन है, तो मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन। तो मैं ये चैट में इधर लिखता हूँ कि बेसिकली आई थिंक यू आर एबल टू सी इट। या सो 18900 जो दिसंबर 2022 में जो हाई मारा था निफ्टी ने, ऑल टाइम हाई, और 16800 जो कि मार्च 2023 में लो मारा था। ठीक है, तो ये 2100 पॉइंट्स का एक करेक्शन हुआ था निफ्टी में। तो ये 2100 पॉइंट्स का 1.5 टाइम्स हम लोग अगर करेंगे तो मोटा मोटी आता है 15 सो अराउंड 3000 पॉइंट्स आता है। ठीक है, 3000 पॉइंट्स से भी थोड़ा ज्यादा, अराउंड 3200 पॉइंट्स आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3150 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 3150 को मैं ऐड करूंगा 16800 के साथ, और यहाँ पे मेरा आएगा 19950। सो ये मेरा 150% फिबोनाची एक्सटेंशन निफ्टी का कैलकुलेशन करके निकलता है। ठीक है, तो निफ्टी में ऑलरेडी हम लोग 123.6 और 138.2 वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 150%। तो अभी ये 150% जो है ना, वो 19950 में आ रहा है, बट निफ्टी इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स दैट टारगेट। ठीक है, सो एंड द वे इट इज मूविंग, आई मीन इट्स pretty amazing, and it's very constructive also. Every day it is having a dip, and every day the dip is getting bought. Okay, so now I minimize this chat, and if we see this candlesticks, see this candlestick. So what is there? The lower wick is bigger than the upper wick. Okay, and now I move this candle and see this candlestick. What is there? The lower wick is much bigger than the upper wick. So every day Nifty is seeing a correction intraday, and every day that correction dip is getting bought, and every day it is closing near to the opening or near to the highs of the day. Okay, so that means the internal strength of Nifty is extremely bullish, and every day आप अगर यहाँ पे ये चार कैंडल को देखोगे, if you see these four candlesticks, ठीक है, see these two are very big white candles, ठीक है, bodies are very big, and the closing is almost near the highs of the day. Then yesterday was a doji small red candle, ठीक है, but it made a higher high, ठीक है, and today again it made a higher high. So what I am trying to say is, while it is going up, it is also moving up in a channel like this. This is moving up in a channel like this.
ठीक है। तो एवरी डे इज मेकिंग अ हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो करते करते जा रहा है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 19950, एंड 19950 आएगा तो 20,000 तो 5 मिनट में आ जाएगा, 50 पॉइंट। ठीक है, तो वो 19950 20,000 वो एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है मेरे ख्याल से, अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। एंड वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट ये जो लेवल है ना, what I am expecting Nifty to do is 19,950 2000 में आके 20,000 में आके ये जो जोन था जहां पे काफी उस दिन कंसोलिडेट किया था, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये जगह में मार्केट फिर से वापस आएगा, जो कि 19,600 के आसपास है। तो ये 19,600 जो 19,530, ये जो जोन था 19,530 या एग्जैक्टली 530 600, ये जो जोन था, इसके बाद ब्रेकआउट करके मार्केट अभी 250 पॉइंट का रैली दे रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट 19,600 और उसका नीचे का जो लेवल है, एंड विच इज क्वाइट नियर टू द मूविंग एवरेज ऑल्सो 19,325, विच इज क्वाइट फार अवे। तो 19,530 600 वो वाला जगह टेस्ट करना चाहिए निफ्टी को 20,000 के जाने के पहले बाद। ठीक है, एंड बाय दैट टाइम आई थिंक दिस मूविंग एवरेज में आल्सो मूव टुवर्ड्स 19,500। ठीक है, तो वो मूविंग एवरेज भी टेस्ट कर जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू डू, कि पहले 19,950 20,000 में जाए, उसके बाद एक 19,500 तक एक करेक्शन होने का चांसेस है। और अभी तो अच्छा खासा पिंक जोन में पहुंच गया है, तो ये पिंक जोन में मार्केट जब भी जाता है, मैं अब लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ, ऑल डेटा में देखता हूँ ना निफ्टी का। तो जब भी ये पिंक जोन में जाता है ना, मार्केट का करेक्शन आता है। आप अगर देखोगे जब भी मार्केट ये पिंक जोन में गया है, ठीक है, इतना छोटा ज्यादा लंबा पीरियड, बहुत ज्यादा ऑल डेटा ले लिया, ऑल डेटा को छोड़ के मैं पिछला 3 साल का देखता हूँ। ठीक है, ऑल डेटा में क्या आता है ना, कैंडल स्टिक्स तो समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप अगर एक चीज देखो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, एंड दिस इज द फोर्थ इंस्टेंस। तो पिछला जो 3 इंस्टेंस था, तीनों में काफी अच्छा करेक्शन हुआ था मार्केट में। ठीक है, तो एक हुआ था आपका जुलाई टू सितंबर 2022 में, उसके बाद हुआ था सितंबर 2021 में, राइट, जो 18,604 से मार्केट का जो करेक्शन हुआ था वो एक, फिर यहाँ पे आपका दिस करेक्शन, राइट, अगस्त 2022 में एक करेक्शन हुआ था, यहाँ पे जो 18,100 से लेके आई थिंक आया था मार्केट यहाँ पर तो 15,200 तक। ठीक है, फिर दिस वन आई थिंक 16,000 के आसपास आया था, 18,600 से, राइट। और उसके भी पहले हम लोग ने देखे थे नवंबर दिसंबर जनवरी 2021 में इधर एक करेक्शन दिखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करेक्शन था, ये जो करेक्शन था बेसिकली, ठीक है, सो दिस करेक्शन इज द वन, दिस वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ये करेक्शन था 15,500 से लेके 13,500 ऐसा। तो ये पिंक जोन में जब भी मार्केट जाता है ना, करेक्शन तो आता है निफ्टी का, हिस्टोरिकली करेक्शन आया है। ठीक है, तो ऐसा हिस्ट्री डजंट ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, बट हिस्ट्री से हम लोग कुछ कॉशन जरूर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी में जल्दी जाएंगे। तो बैंक निफ्टी का मैं जो आज शॉर्ट्स में भी बोला था और कल पोस्ट मार्केट में बोला था कि बैंक निफ्टी का कल का जो क्लोजिंग था वो फॉल्स ब्रेकआउट के तरह लग रहा था, और 45,500 के नीचे क्लोजिंग किया था, एंड 655 इसका अर्लियर एक हाई था। ठीक है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, जो मुझे थोड़ा ये लगा था कि इट डजंट लुक दैट मच कन्विंसिंग। एंड टुडे अगेन बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग
था बेसिकली, विच वाज 45,669.3। तो 655 के थोड़ा ऊपर है, मतलब 655 हम लोग वी कैन नॉट कंसिडर टुडेज मूवमेंट इज आल्सो काइंड ऑफ ब्रेकआउट मूवमेंट, बिकॉज द क्लोजिंग इज एग्जैक्टली अराउंड 45,650 जो कि इसका प्रीवियस हाई था। ठीक है, तो अभी मैं इसको ना छोटा कर दूंगा, 9 मंथ्स का कर दूंगा। तो 45,655 से ये ये जो जगह था, मैं बोल रहा हूँ दिस कैंडल, ये जो कैंडल था ना, ये ये एक छोटा सा दोजी टाइप का जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये दोजी कैंडल का हाई था 45,655। ठीक है, तो आज ये 669 अराउंड वो दोजी कैंडल का हाई के तरह हाई के जगह में जाके ही मार्केट क्लोज किया है। इवन दो आज का जो कैंडल स्टिक है उसमें लोअर वीक काफी बड़ा है, मतलब लोअर लेवल में बाइंग हुआ है बैंक निफ्टी का, बट द क्लोजिंग ऐसा जगह में हुआ है, इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। एंड ऑल्सो यस्टरडेज हाई वाज नोवेयर नियर। ठीक है, कल का जो हाई था 900 के ऊपर, उसके आजू बाजू में भी मार्केट नहीं गया था आज, 700 के ऊपर भी नहीं गया। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अभी भी ये रेंज के अंदर है। ठीक है, इसको आप ब्रेकआउट नहीं मान सकते बैंक निफ्टी का, और आप देखोगे ये 70 के नीचे भी है डेली आरएसआई। तो बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली वीकर ऑफ द टू इंडिसेस, और 45,892 के ऊपर क्लोजिंग अभी भी पेंडिंग है बैंक निफ्टी का। ओके, so that's how the market looks like. I think Nifty is headed toward 20,000 very soon. I think this week itself, and uske baad se I'm expecting a correction towards 19,500. So that's how my viewpoint is about the market. Thank you for watching. Have a nice evening.